the ceasefire has been violated. So, what does it mean? So, what I intend to do today in this conversation is essentially ask 10 questions, which are very serious questions for Prime Minister Modi. I had held these questions back because India was at a war, and technically the war is over. India has declared ceasefire. Pakistan is currently violating it. Now it depends on what India does going forward. If India chooses to continue to respond and retaliate. Right now, India is defending itself, but will India relaunch attacks on Pakistan because the ceasefire is over? Or will India wait for the rest of the world to see that it is Pakistan which is aggressing again? There has been no explanation from Pakistan as to why there is a violation of the ceasefire, especially after they thanked Marco Rubio for his role and for Donald Trump for his final touch on ensuring that there is a ceasefire. And clearly, as I have said in my previous discussion, कि पाकिस्तान को तो bribe भी किया गया. The US has given Pakistan the $1 billion that it could have stopped with IMF. So, what is the reason for Pakistan to violate the ceasefire right now? There are lots of speculation going on. I will touch upon those, but I'm just waiting for more people to join up. Then I will raise the 10 questions that I have for Prime Minister Modi. These are serious questions that I want to ask about policy in dealing with Pakistan in particular. So there are some speculations as to what is happening. One is that the army has gone rogue, that the deal was made with only Shehbaz Sharif and Asim Munir is now gone rogue. But that is not true. If you read Marco Rubio's statement and the State Department statement, it clearly mentions that both Asim Munir and Shehbaz Sharif and even Asim Malik, the national security advisor of Pakistan, all three were consulted on this. And I don't think that the Pakistani government will announce a ceasefire. I mean, Isaac Dar was the person who announced, and director of military operations of Pakistan himself made the phone call to India, to his counterpart, to talk about the ceasefire or propose the ceasefire. So the military was involved in it. So to say that Asim Munir is rebelling does not make sense. So the question is somebody below him rebelling against Asim Munir? So which means that the number two in the Pakistani army is saying, well, we'll continue with the fire and make sure that Asim Munir is not given a second term as chief of army staff, and so he will continue. So there is a transition in the military. Is that the whole purpose of this? There's another theory that is going on. I was on Satya Hindi just now, an hour. You can watch it live. And one of the scholars on that was suggesting that perhaps China is very upset that India and Pakistan did not approach China to mediate and establish a ceasefire between the two of them. And so it is at the behest of China, at the pressure of China and maybe even Turkey, that the Pakistani army has broken the ceasefire, forcing, if India really wants a ceasefire, then to go to China rather than to go to Washington, D.C. This is China's way of overturning the global order. I'm not very sure that that is the case, because one of the speculations that is coming around is this question as to why did the United States, which said this is none of our business, then suddenly spend the whole night? Why did J.D. Vance, who just 2 days ago said this is none of America's business, why did J.D. Vance spend the whole night along with Marco Rubio talking to both Indian and Pakistani officials? Even they spoke with Narendra Modi as well as Shehbaz Sharif. So one theory that is coming across is that Pakistan, by triggering the nuclear, when they made movement as if they are getting ready for a nuclear encounter, which put pressure on America to expedite its engagement and created a sense of urgency for the US. तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर स्टेप्स लिए हैं, न्यूक्लियर कंट्रोल बोर्ड वगैरह जो भी शहबाज शरीफ ने किया था, उसके रिपोर्ट्स तो आपने देख लिए होंगे कल. तो उसके वजह से वाशिंगटन में एकदम तेज़ी और परेशानी बढ़ गई, एंड सो दे डिसाइडेड टू गो अहेड एंड मेक दिस.
So it is. Let me check. Shehbaz Sharif is apparently declared war on India. That is not possible. Uh, so 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 तो सवाल ये उठाए कि the Washington suddenly decided that it was time for it to intervene. तो ट्रंप के लिए दिस इज एन एम्बेरसमेंट, नो डाउट। ये उनका थर्ड सीज फायर हैट्रिक हो गई है, हैट्रिक ऑफ फेलियर्स। यूक्रेन और रशिया का सीज फायर नहीं हुआ, इसराइल और हमास का सीज फायर होने के बाद फ़ौरन टूट गया, इसराइल ने तोड़ दिया, और फिर अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीज फायर है उसमें पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। और इन दोनों केसेस में एटलीस्ट द सेकेंड एंड द थर्ड केस द वायलेटर्स आर पीपल जिनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, अमेरिका का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान पर और इसराइल पर। दे ऑल वायलेटेड। सो दिस मस्ट बी वेरी इरिटेटिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। तो पाकिस्तान ने अगर सीज फायर वायलेट किया है देन दे आर फुल्ली कॉग्निजेंट, मतलब वो अवेयर ऑफ द फैक्ट ये है कि दे आर गोइंग टू बी अपसेटिंग डोनाल्ड ट्रंप गोइंग फॉरवर्ड कि भाई आपने सीज फायर क्यों तोड़ा। So I'm sure that right now there must be questions that Washington is asking Islamabad or Rawalpindi, okay, what the hell is going on? So I don't know what Asim Munir is telling to people in Washington D.C. because State Department as well as Department of Defense directly बात करते हैं इससे। Uh, uh, so that is happening in that sense कि Asim Munir, what is the explanation he's giving to Washington, D.C. With regards to why the ceasefire was broken? तो अब सवाल उठता है कि इंडिया ने सीज फायर क्यों। तो मेरे जो 10 सवाल है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, पहला सवाल ये है कि व्हाई डिड इंडिया एक्सेप्ट द सीज फायर। अगर इंडिया का मकसद था कि पाकिस्तान को सबक सिखाए, वॉज इंडियाज मिलिट्री गोल वॉज to teach Pakistan a lesson, then why did India accept ceasefire? What was the pressure that the United States put on America? इंडिया तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इतना वैल्यू करती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा गोल इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, विच मीन्स नॉट टू बी अंडर प्रेशर फ्रॉम अदर प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्रेशर्स, और ख़ासतौर से सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर द यूनाइटेड स्टेट्स। सो व्हाई डिड मोदी एक्सेप्ट सीज फायर? That is the big question. Was Modi worried that Pakistan was performing better than expected and India was not performing as people want India to perform? मतलब आधा इंडियन मीडिया झूठ बोल बोल के तंग आ गया है। मतलब दे हैव नथिंग टू ब्रैग अबाउट, सो झूठ बोल रहे हैं कि इस्लामाबाद को कैप्चर कर दिया, लाहौर को आग जगा दी, कराची में आग लगा दी। इस तरह के इंडिया इज़ क्लेमिंग फैक्ट्स वाइल द इंटरनेशनल मीडिया इज सेइंग कि इंडिया के 2 रफाले या 3 फाइटर जेट्स गिर गए हैं। देर आर क्लियरली कैजुअलिटीज़ ऑन द इंडियन साइड, मतलब सिविलियंस मर रहे हैं। कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने शिकायत की कि उरी और ये सारी जगहों पर पुंछ वगैरह में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हेवी artillery fire across the line of control. So there is a lot of damage that India was already taking. So did Prime Minister Modi, जो ना तो मणिपुर गए ना तो कश्मीर गए, वो ना तो उन्होंने विक्टिम से मिला, बस उनको बिहार में कैंपेन करने से फुर्सत नहीं है। सो डिड ही डिसाइड कि अरे ये मेरे पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए दिस इज़ नॉट good, so he decided to do a ceasefire before all damage ho? Is that the question? So we really need to know why. What was the pressure? पाकिस्तान का हम समझ सकते हैं, द यूएस ऑलरेडी गेव अ ब्राइब। आईएमएफ का जो लोन आया है $1 बिलियन, दे आर I don't know what people, Chaudhary Saab, India is not for war, India is still punishing. I don't know what you're talking about. The Indian public can talk whatever they like. The Indian public is not fighting the war. The Indian public is just shouting on Twitter and shouting on X and on the streets, and Indian media is shouting on television. The action में तो नहीं है ना ये. So what the public wants is irrelevant. What does Modi want? Why doesn't he talk to the public? This is a democracy, isn't it? To come out and explain the decision as to why India accepted ceasefire. पिछले 2-3 साल से, for the last 2-3 years, the Indian government was making big talk about how they would take Pak-occupied Kashmir, गिलगित बल्तिस्तान हम ले लेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, we will make Balochistan independent,
वगैरह, वेयर इज ऑल ऑफ दैट? दिस वॉज ए गुड चांस, घुस जाते, ले लेते। मेजर आर्या ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि सलामी स्लाइसिंग कर लेते, इंडिया की आर्मी घुस के एक 500 600 5000 किलोमीटर का कब्जा कर लेते, पीक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में घुस के उसको ले लेते, इट इज़ सो क्लोज। सो अगर इतना बड़ा पावरफुल कंट्री है, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी, ये वो वर्ल्ड पावर, चाइना से ये लड़ने वाला है, तो वाई कांट इट डील? मतलब इंडिया इज बिकमिंग अ वर्ल्ड पावर, पाकिस्तान भिखारी स्टेट है, पाकिस्तान इज भीख मंगा स्टेट। इतनी बातें पिछले 2-3 साल से चल रही हैं इन इंडिया में। सो हाउ कम इंडिया मेड सीज फायर सो क्विकली? It is like Houthis and America. America is the biggest economy in the world, the most powerful country in the world. Houthis दुनिया के सबसे गरीब मुल्क है यमन, दे हैव नथिंग। उनके फाइट के वजह से एक तो $1 बिलियन खर्च हो गया अमेरिका के, उसके अलावा 3 जेट्स भी गिर गए। इट्स ए डिफरेंट थिंग कि हुतीज़ ने डायरेक्टली नहीं गिराए, लेकिन वॉर के प्रेशर में अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स जैसा इंडिया के गिरे हैं वैसा उनके भी गिर गए थे। सो दे पुट एन एंड टू दैट वॉर, सेइंग इट इज़ टू कॉस्टली टू पनिश Yemen. So did Prime Minister Modi decide that it was too costly, both politically and militarily, to try and punish Pakistan? अब तो वो बहुत उचक रहे हैं। द गोल, जो मकसद था ऑपरेशन सिंदूर का, was threefold. One, to punish Pakistan for promoting terrorism in India. Number two, to create a deterrence कि आइंदा ना करे, पाकिस्तान डर के कांपे। क्या पाकिस्तान कांप रहा है? पाकिस्तान तो सीज फायर भी तोड़ रहा है। मीन सीज फायर शुड हैव कम एज अ बोनस टू द वीक पावर ना। अगर वीक पावर को सीज फायर मिल जाता है तो वो लपक के ले लेता है सीज फायर, बिकॉज देन जंग रुक जाएगी, इंडिया वुड हैव स्टॉप बॉम्बिंग पाकिस्तान, इंडिया वुड हैव स्टॉप पनिशिंग पाकिस्तान। So why is Pakistan breaking the ceasefire? Because Pakistan thinks it is not being punished. On the other hand, it thinks it has an upper hand in the conflict so far. So that is the point. I'm just analyzing Ria and I'm not like people taking sides. Why would I take sides? Yes, I'm from India. I'm an Indian Muslim. I'm sympathetic to Indian cause, but that is not going to make me blind to the realities. Okay, I'm not going to say that things like India has captured Pakistan and Pakistan economy when that's not true. That is for Modi bucks, not to ask serious questions and to speak lies. I mean, if you're watching Indian television, you would have think that by now India had captured most of Pakistan, which is not the true, which is not a reality at all. You can live in your imaginary world if you like. Uh, Taking sides does not mean that you become blind to what is happening in the world. That's what political science is about. That is what being an analyst and being is about. I'm not a Modi sponsored, this is not Arnab Goswami's channel, heavily funded by Indian government's advertisements, etc. So don't worry about what, don't keep wondering whose side, what my motivation. Listen to the argument, listen to the discussions, and you will probably reach your own conclusions, right? So the question is, India wanted strategic autonomy. Why is America in between? And why has India accepted it? That's the first question that everybody should ask. Why has Modi accepted a ceasefire? Look, Pakistan is not accepting a ceasefire even after announcing it. The attacks on Jammu and Kashmir and Srinagar that happened in the last few hours after the ceasefire clearly shows that, and the attacks were quite heavy. It's not like bullets fired or something like that. The simplest explanation is that some commander did not get the news, but everybody has the news, doesn't they? Don't the commanders have internet? Don't they have social media? Aren't they getting phone calls and orders from their superiors? Someone must have told these officers on the ground to shoot. Who is that and why is the question. But the other question is for Prime Minister Modi, why did he accept a ceasefire? And the ceasefire was not a simple thing. I have said this before and I'm saying it again. जाके मार्को रूबियो का स्टेटमेंट पूछिए. जो मार्को रूबियो का जो स्टेटमेंट था, it is quite worrying. उसमें उन्होंने कहा, I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. ये broad set of issues क्या है? What else is there to talk about with Pakistan other than uh, trans
ट्रांस बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और क्या बात करेंगे जाके? Pakistan wants to talk about India's role in Baluchistan. Pakistan wants to open the discussion on the Indus Valley, Indus Water Treaty. Pakistan wants to maybe even want to open trade. Like what is it Pakistan is talking about? कश्मीर के बारे में बात करना चाह रहा है, 370 के बारे में. So Kashmir has become an issue, international issue now. India is going to go to a third country and discuss issues related to that. This is a serious question. This is my second question to Prime Minister Modi, that what are the other broad issues that you have agreed to discuss with Pakistan? Because Marco Rubio would not have typed that. The State Department would not have issued that statement if the Indian side had not agreed. That is the question. मतलब देखिए, इस चैनल पे जो डिस्कशन होते हैं, दे आर सीरियस डिस्कशन फॉर पीपल हु हैव रेड थिंग्स, हु अंडरस्टैंड थिंग्स, हु वर्क अबाउट डिप्लोमेसी. ये जिंगोइज्म नहीं है यहाँ पर. वो जिंगोइज्म देखना है तो आप जाके टीवी ऑन कर लें, वहाँ पे देखें. वहाँ पे आपको बता देंगे शायद कि इस्लामाबाद डूब गया पानी में, कराची हवा में उड़ गया, इस तरह की चीज़ें. इज़ रबिश. इनफैक्ट अभी तो सोशल मीडिया पे एक रिपोर्टर खुद फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसका चैनल पे चल रहा है, जाके देखिए. एक्स पर के ही इज कंप्लेनिंग कि यू वांट एन अपडेट एंड देन यू वांट टू से फेक न्यूज़. ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड, वो गाली भी दे रहा था अपने ही एंकर को. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड इंडिया अग्री to discuss broad issues which could include Kashmir and lots of other things. It looks as if Prime Minister Modi was desperate to get a ceasefire after starting this whole conflict, because he's more focused on saving his own prime ministership. देखना, after this whole thing is stopped, इंडिया में इतनी झूठे बातें होंगी. They will say such lies just to save Modi and BJP government. They will not talk about Rafale. मेरे जैसे चैनल्स को बंद कर देंगे. वहाँ पे प्रवीण साहनी को भी बंद के. Anybody who is asking tough questions, they will be silenced. They just want the Indian population to be dumb, stupid, ignorant, and jingoistic. That's all they want. They don't want facts. And facts are important. The whole world is seeing what is happening. They are already talking about how Chinese technology is defeating Western technology in this war. Is it possible that Pakistan has broken the ceasefire under pressure from China? That is a serious question. You should ask that. The third question that I want to ask is, why were no Tejas used in this battle? India was using all foreign technology. जो पहला अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, according to Indian reports, they used Mirages, Jaguars, Rafales, Sukhoas, MiGs, but no Tejas. आपने सुना, किसी ने सुना कि Tejas were used? No, they were not used. So the question is कि why were Tejas not used? इंडिया को तो बेचना है ना दुनिया को, as a superpower, as a major manufacturing giant. This was a good chance for India to demonstrate to the world what a great Indian-made jet fighter Tejas is. Tejas 2 तो खैर अभी उड़ा भी नहीं है. They are waiting for US to give India F414 engines. जब वो आएंगे तब बनेंगे. वो 2030 वाला प्रोजेक्ट है वो. But Tejas 1 जो है, why were they not in action? जैसा देखिए, this is the age of air warfare. The US dominates the world through air dominance. And then उसके बाद sea. So this is a very serious question. Why didn't the Tejas go into action? ये मेरा तीसरा सवाल था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए. जो चौथा सवाल है, ये बहुत सीरियस सवाल है. सीरियस सवाल ये है कि इंडिया का गोल जो था, बिसाइड्स पनिशिंग पाकिस्तान, वाज टू एस्टैब्लिश डिटरेंस. 2019 में बालाकोट हुआ, उसके बाद से कोई मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई. 2021 में पाकिस्तान अग्रीड फॉर ए सीज फायर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, और 2021 से लेकर 2025 तक देयर वाज सीज फायर. सो द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ वाज, जो बालाकोट का, पुलवामा के बाद जो बालाकोट के स्ट्राइक्स किए थे इंडिया ने, दैट हैड ए डिटरेंस इफेक्ट. इसके वजह से ना तो पाकिस्तान वाज प्रमोटिंग टेररिज्म इन इंडिया, नॉर वाज देयर एक्शन ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल. तो अब जो पहलगाम के बाद जो एक्शन इंडिया ने लिया है, क्या उससे पाकिस्तान डर गया है? इस पाकिस्तान शेकिंग इन इट्स बूट्स?
एंड नॉट गोइंग टू अटैक इंडिया एंड नॉट गोइंग टू प्रमोट। अभी तो देखें आप, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इतनी हिम्मत आ गई है इस एक्शन के बाद कि यू विल सी मोर टेररिज्म। गॉड forbid I am wrong, I hope I am wrong, but you might see more terrorism in Kashmir because Pakistan is now feeling bold कि ठीक है, हम और टेररिज्म करेंगे, इंडिया अगर जवाब देगा तो हम और रफाले गिरा देंगे। So that is a very serious scenario. So people need to ask मोदी कि भाई आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते नहीं, ये बताएं कि आपने डिटरेंस एस्टैब्लिश कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। हैव यू अचीव्ड योर गोल्स ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। ये तो मैं शुरू में भी कहा था, द फर्स्ट शो दैट आई डिड, दैट यस इट वाज सेंसिबल हिटिंग टारगेट्स, नॉट अटैकिंग, because it was non-escalatory. So from a diplomatic perspective, it was a sensible decision. That was the title. वो भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया मेरा वीडियो, बिकॉज उसमें मैंने दूसरा सवाल भी उठाया था, इज दिस स्ट्रेटिजिकली पावरफुल? दैट इज वाई दैट वीडियो वॉज ब्लॉक्ड in India. Even though the title itself says that what India was doing was sensible. Yes, it was sensible. It was answering the public's demand to strike in Pakistan, and it was also answering international demand with restraint. But strategic सवाल ये था, was it enough to create a deterrence? And obviously as things have unfolded, जैसा अब हम देख रहे हैं, डिटरेंस एस्टैब्लिश नहीं हुआ। पाकिस्तान डरने के बजाय और चढ़ावा ही चढ़ रहा है। सीज फायर के बावजूद वो ट्रम्प से भी नहीं डर रहा है अब। लाइक जस्ट गॉन एमक एंड क्रेजी। यू थिंक ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू बी पिस्ड ऑफ विद पाकिस्तान राइट नाउ? क्या लोन भी हमने आपका अप्रूव कर दिया, उसके बावजूद आपने सीज फायर तोड़ दिया। वी विल सी व्हाट हैपन्स ऑन द यूएस पाकिस्तान फ्रंट। उसके लिए मैं अभी तक तो कुछ नहीं आया, एंड वी विल सी आफ्टर सम स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूएस कम आउट ऑन द सीज फायर वायलेशंस। मेरा पांचवा सवाल है अबाउट डिप्लोमेसी। पिछले 4-5 साल से इंडिया में इतना धूम हो रही है कि इंडिया इज़ बिकम अ डिप्लोमेटिक पावर, बिग पावर, वर्ल्ड पावर, वी आर वन ऑफ द टॉप पावर्स इन द वर्ल्ड, एवरीबडी इज़ लुकिंग टू इंडिया। G20 इंडिया में हो रहा है, SCO इंडिया में हो रहा है, एंड ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्स। अमेरिका ख़त्म हो गया, फिनिश, ये फिनिश वो फिनिश, चाइना की इकोनॉमी डूब गई, उसकी रियल एस्टेट, इतना बकवास चल रही है इंडिया में नॉन स्टॉप। एवरीबडी वांट्स टू बी इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, बहुत चीज़ हुआ, कई फॉरेन लीडर्स इंडिया आए। वेयर आर दे नाउ? वाई इज अमेरिका नॉट स्टैंडिंग विथ इंडिया मिलिटरीली? बयाना तो कोई भी दे देगा टेररिज्म के खिलाफ। खुद मैं कह रहा हूँ ना, आईसिस से अगर आप पूछें तो वो भी टेररिज्म को कंडेम कर देंगे, क्योंकि वो नहीं समझते कि वो जो कर रहे हैं वो टेररिज्म है। So just condemning terrorism is not enough. Nobody condemned Pakistan by name. जाके देखिए आप मार्को रूबियो के जो स्टेटमेंट्स थे ऑन द स्टेट डिपार्टमेंट आफ्टर टॉकिंग विद जयशंकर एंड आफ्टर टॉकिंग विद शहबाज शरीफ, दे वर आइडेंटिकल। ट्रम्प सेड दैट आई एम क्लोज टू पाकिस्तान, आई एम क्लोज टू इंडिया। और पिछले एक महीने से आपको सुनने में आया है दैट मोदी इज़ माई ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज़ माई क्लोज फ्रेंड? कुछ नहीं, इस कॉन्फ्लिक्ट में नथिंग। देयर वाज नथिंग फ्रॉम मोदी टू ट्रम्प। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द यूएस एंड इंडिया जो लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। Why aren't people talking about this? भाई कितना शूशा हुआ था कि इंडिया वाज अहेड ऑफ एवरीबॉडी ऑन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया आगे है सबसे तेज़, इंडिया पहले से प्रिपेयर किया है। सारे दुनिया के मुल्क ट्रम्प के टैरिफ्स को अपोज किया है, इंडिया ने अपोज नहीं किया। इन्होंने पहले ही घुटने टेक दिए थे, इन्होंने पहले ही टैरिफ्स कम करके जाके बात की है, इंडिया इज गोइंग टू गेट अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर चाइना से सब कुछ अमेरिका इंडिया आ जाएगा। क्वार्टर अब जाके देखें, चाइना की क्वार्टर 5.4% से ग्रोथ हुई, चाइना की इकोनॉमी। यूएस 0.3% से रिसेशन में आ गई, नेगेटिव ग्रोथ जीडीपी यूएस का। सो द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया में कोई सीधे सख्त सवाल पूछता ही नहीं, कोई सख्त जवाब, जो भी सख्त जवाब देता है उसको बंद कर देते हैं। उनका चैनल ब्लॉक। प्रवीण सानी ने सवाल पूछा, उनको बंद कर दिया। प्रवीण सानी वेंट ऑन वायर, वो वहाँ पे वो वीडियो ब्लॉक हो गया। सो द थिंग इज़ के सीरियस सवाल देने की हिम्मत ही नहीं है। दैट्स वाई देयर आर नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडिया, क्योंकि उनसे पहला सवाल ही पूछ लेंगे, आपने अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गया, आपने अभी तक पहलगाम क्यों नहीं गया, आपने जाके जो विक्टिम्स हैं उनसे क्यों नहीं मिला अभी तक, आपको फुर्सत है भाई बिहार की कैंपेनिंग से?
सितंबर 17 को आपकी बर्थडे है, आप 75 के हो जाएंगे, आपने ये रूल बनाया था कि 75 की उम्र में सबको रिटायर हो जाना चाहिए, आर यू गोइंग टू रिटायर? इस तरह के सवाल आप तो पूछेंगे, ही हैज़ नो आंसर्स टू दैट, सो ही डजंट वांट टू हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मिस्री को भेज देते हैं, तो तू जाके बोल। So that is one serious question. Has India established deterrence and has India's diplomacy worked? जापान कहाँ है भाई? क्वाड कहाँ है? और लोग जो कहते हैं कि क्वाड इज़ नॉट ए मिलिट्री अलायंस, भाई इतना नेवी की प्रैक्टिस, नेवी ये नेवी एक्सरसाइजेस विद द क्वाड, यूएस के साथ हाई लेवल डिफेंस को पार्टनरशिप, इतने लंबे लंबे एक्रोनिम्स है ये ट्रीटी साइन, वो डिफेंस ट्रीटी साइन, ये डिफेंस अग्रीमेंट साइन, ये डिफेंस ड्रोन्स खरीद रहे हैं, फो नॉन स्टॉप पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं अबाउट यूएस इंडिया जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्वाड के थ्रू वेयर आर दे, वेयर इज ऑस्ट्रेलिया? द ओनली चीज़ जो 3 दिन में सुनने आए, अल्बनीज वन द इलेक्शन एंड इंडिया, जयशंकर कॉन्ग्रेचुलेटेड अल्बनीज। वाई आर दीज पीपल सेंडिंग स्टफ टू इंडिया? दैट इज़ द सीरियस और एक सीरियस क्वेश्चन कि क्वाड कहाँ है? So that is one more question that I think people are not asking it. बस यही है इंडिया का लेवल यही है। विश्व गुरु एक यहाँ आ गए, मिस्टर खान, वेर इज़ बर्नॉल? भाई बर्नॉल आपको होने चाहिए, आपका मुल्क, आपके प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान इंडिया की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया दुनिया की। पाकिस्तान भीख मांग रहा स्टेट, इधर से चंदा उधर से चंदा लेके चल रहा है और उसको नहीं, उसको डोमिनेट नहीं कर सके। बर्नॉल तो पूरे मुल्क को लगाना चाहिए। दिस इज़ द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द पॉपुलेशन। इनके वोट के खातिर इतने बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिकॉज दे वांट द वोट ऑफ दिस लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड दे टॉक अबाउट assholes. You worried about my asshole? What a stupid question this is. You should be talking to Arnab Goswami. That is your level. Go there. He will tell you whatever you want to hear so that he can get advertisement money from the government of India. And if he doesn't say that, then ED will come and shut him down. Okay? Another interesting question that Prime Minister Modi needs to answer is India's Air Force ready to handle China? Are you satisfied with India's, uh, uh, are you satisfied, as an Indian, are you satisfied with India's Air Force performance against Pakistan? Does this give you confidence that India is ready to face China, which is not coming with JC-10s, which is coming with J-30s? So that is the question. Is India's Air Force ready? It is like saying that India ki cricket team is playing against Hyderabadi Ranji team and is agreeing for a draw after 2 days. पूरा 3 दिन में मैच नहीं खेला, 2 दिन के बाद ठीक है हम ड्रॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। हैदराबाद कैप्टन ऑफर्स ड्रॉ एंड इंडिया टेस्ट कैप्टन से हाँ ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं। अरे भाई आप हैदराबाद को नहीं हरा सकते हो तो फिर जाके ऑस्ट्रेलिया से क्या टेस्ट खेलोगे? दैट इज़ द एनालॉजी, दैट इज़ द एग्जाम्पल कि आप पाकिस्तान से ड्रॉ एक्सेप्ट कर लिया, सीज फायर राइट अवे, तो अगर खुदा ना खास्ता चाइना से जंग लड़नी पड़ी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, then how will you manage it? Is Indian Air Force ready to handle China? That is another question that we really need to ask. उसके बाद ये जो negotiations हुए, it was amazing how Trump took the credit right away. मतलब अभी तक कह रहे थे कि इट्स बिटवीन द टू ऑफ देम एंड वी होप दैट दे विल एक्ट सेंसिबली, जेडी वैंस ने कर दिया, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस एक्सेट्रा, एंड देन सडनली रात भर में बोथ जेडी वैंस एंड मार्को रूबियो फ़ोन कॉल्स पे डिस्कशन करके दे अग्री टू द डील एंड देन दे लेट डोनाल्ड ट्रम्प टेक क्रेडिट फॉर इट। आप जाके स्टेटमेंट्स देखें, इसाक दार का देखें या इंडिया का देखें या डॉक्टर जयशंकर के जो स्टेटमेंट्स है, नन ऑफ देम हैज़ रिकग्नाइज्ड डोनाल्ड ट्रम्प। बाद में पाकिस्तान की तरफ से कहा कि यस मार्को रूबियो ने बहुत मेहनत की एंड देन डोनाल्ड ट्रम्प पुट द फिनिशिंग टचेस ऑन इट। आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन ऑन द फोन विद शहबाज शरीफ एज वेल एज विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, बट व्हाई डिड इंडिया अलाउ डोनाल्ड ट्रम्प टू टेक? अब थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो गया ना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ख़त्म हो गई आपकी, बायलैटरल जो आप हमेशा रखना चाहते हैं वो भी ख़त्म हो गया, देयर इज़ इंटरनेशनल इंटरवेंशन।
अब ये जो नेगोशिएशंस होंगे सीज फायर के बाद, अगर हो, इफ इंडिया अटैक्स बैक, देन दिस वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। एंड आई कैन टेल यू दिस मच कि अ, अब जो सीरियस सवाल ये है कि इफ़ यू आर चाइना एंड इफ़ यू आर टर्की, आपको तो मज़ा आ गया ना, यू आर सेइंग ओ वाओ, लेट अस सपोर्ट, आई थिंक चाइना विल स्टेप फॉरवर्ड एंड प्रोवाइड मोर वेपन्स फॉर पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज जितना पाकिस्तान डैमेज करता है इंडिया को, उतना चाइना के लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज अ सीरियस कंसिडरेशन गोइंग फॉरवर्ड। और फिर ये सवाल मैं आपसे सीरियसली कर रहा हूँ, पिछले 2-3 साल से इतना धूम हुई है इंडिया में कि वी विल टेक पीओ के। इंडिया की जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी थी, उसमें अ, जो है सो अखंड भारत का मैप था। इंडिया की जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सो द मोदी गवर्नमेंट इज सिग्नलिंग पीपल कि भाई देखो हम पीओ के ले लेंगे। हालांकि उसमें अफगानिस्तान भी है, बर्मा भी है, तो क्या इन सब पे हमला करने वाले हैं इंडिया? और मज़े की बात यह है कि इफ़ इंडिया डज गेट अखंड भारत विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो वहीं पे 300 मिलियन और मुस्लिम इंडिया में आ जाएंगे। फिर अब अफ़गानिस्तान को भी ले लें तो और 440 मिलियन, बर्मा को भी ले लें तो वो सारे के सारे रोहिंग्या जिसके ख़िलाफ़ है, वो सारे के सारे इसमें भी इंडिया में आ जाएंगे। यू विल हैव अबाउट हाफ ए बिलियन मोर मुस्लिम्स इनसाइड इंडिया। बीजेपी विल नेवर बी एबल टू विन इलेक्शंस इन इंडिया। सो ये सब होने वाली चीज़ें नहीं है। ये जो जो ब्लाइंड मोदी भक्स हैं, उनको बेवकूफ़ बना के उनके वोट लेने के तरीके हैं ये। Nobody is asking serious questions about unemployment in India, about inflation in India, about Indian economy. They don't care because they are being given these foolish dreams. तो अब चांस था ना, जंग शुरू हो गई, द इंटरनेशनल कम्युनिटी डिड नॉट ब्लेम इंडिया फॉर अटैकिंग पाकिस्तान, तो आप घुस जाते। Why didn't you take Baltistan, Gilgit and Baltistan? Why didn't you go in and take Muzaffarabad? This is your chance. अभी भी चांस है, पाकिस्तान ने फिर दोबारा आपको चांस दे दिया बाय ब्रेकिंग द सीज फायर। नाउ गो, टेक इट, इफ इट इज दैट इजी। दिस इज जस्ट टॉक, दिस इज जस्ट टॉक, because nobody asks serious questions in India. Media is not allowed to ask questions. Media is the dumbest thing that I have seen in the world. Dumbest media is the Indian media. Absolute idiots. They're only interested in building narratives. ये तारीखी है, ये हिस्टोरिक है, ये what historic things have happened? Yes, India did attack Pakistan proper, but then they have been attacking back. अब जो सीज फायर जो तोड़ने के जो खबरें आ रही हैं, it's not just in Jammu, but it's also in Punjab and Rajasthan that Pakistan has broken ceasefire. You have a great opportunity, go punish it. So I think it is an important time to ask these serious questions. जंग के दौरान तो मैं नहीं पूछ रहा था, I was quite about it because I was being respectful of India and the Indian public because of the tragedy of Pahalgam. And yes, India needed to do that. इसमें कोई शक की बात नहीं. India was right to attack. I also think that what India did with the initially with the Operation Sindur was सही था. But it's an intelligence failure. देखिए, पिछले 3-4 साल से इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, इतनी बातें करते हैं रॉ 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 रॉ, बहुत ही बेकार। बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो गया, इनको पता ही नहीं चला। वो क्या कहते हैं खबर में, बगल में छुरी शहर में डिंडोरा, वैसा इट्स राइट देयर। इंडिया एंड हैज सच गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश। इंडिया की इंटेलिजेंस वाज ऑल ओवर बांग्लादेश, बट नोबडी न्यू। व्हाई डिडंट समबडी पुट अजीत डोवल राइट देयर? जैसा यहाँ पे सेनेट हियरिंग होती है, उस तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी अजीत डोवल को बुला के पूछी क्यों नहीं कि भाई बांग्लादेश में रिजीम चेंज हो गया, आपको खबर नहीं है? हाउ डज दैट हैपन? पब्लिक को खुश करने झूठे बातें कर देगा, अमेरिका ने करा दिया।
वेरी गुड, अमेरिका तो आपका दोस्त है ना। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि वो बांग्लादेश में घुस के तख्ता पलट दिया इंडिया के बेस्ट फ्रेंड इन द रीजन। साउथ एशिया में इंडिया की बेस्ट फ्रेंड शेख हसीना को ऐसी की तैसी कर दी, इनको खबर तक नहीं पड़ी। दैट्स अ सीरियस क्वेश्चन। कनाडा में एक्सपोज हो गई इंडियन निज्जर के केस में। जर्मनी में आप गूगल करके देखें, जर्मनी ने 4 इंडिया के रॉ एजेंट्स को पकड़ लिया और भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी पकड़ के भगा दिया 2 साल पहले। यूएस में तो पकड़ के जेल में डाल दिया निखिल गुप्ता को, और वो यादव बंदे को इंडिया ने कह दिया ठीक है, हमने उसको भगा दिया, निकाल दिया। इंडिया ने रॉ के डायरेक्टर को रिटायर जल्दी करवा दिया। सो ऑल ऑफ दिस फेलियर्स ऑफ है। पहलगाम में देखिए आप, वेयर इज़ द इंटेलिजेंस। इंडिया के 3.5 लाख की फ़ौज है कश्मीर में, कोई सिक्योरिटी नहीं पहलगाम में। वो जो वैली जहाँ पर ये इतना बुरा हादसा हुआ, और 1 घंटा तक कोई सिक्योरिटी आई ही नहीं। ये सब फेलियर्स हैं, दीज आर इंटेलिजेंस फेलियर्स, सिक्योरिटी फेलियर्स। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, मैं इस तरह की चीज़ चेन्नई में हो गई या कलकत्ता में हो गई या समवेयर फाइन, वी इट्स नॉट अ बैटल ग्राउंड, बट कश्मीर में जहाँ पे तो इट्स यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आपका इंटेलिजेंस इतना बुरा फेलियर। फिर सबसे बड़ा फेलियर जो इंटेलिजेंस का हुआ है कि हाउ विल पाकिस्तान रेस्पॉन्ड। देखिए, जब सिनेरियो बिल्डिंग करते हैं आप, जब गेमिंग करते हैं, तो यू डू ए वॉर गेम कि अगर हम अटैक करें तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अगर हम अटैक करें तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अगर मैं बाउंसर डाला तो क्या वो छक्का मारेगा या डॉट बेंड वो डॉज करेगा। व्हेन यू गेम दिस आउट, तो वेयर इज द इंडियन इंटेलिजेंस? डिड इंडिया एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट हैपेंड इन दिस वॉर? Is there a strategic failure? Is there an intelligence failure? These discussions will not happen बिकॉज अगर ये सब करें तो भाई मोदी जी जो इतने बड़े ज़बरदस्त शानदार लीडर हैं, उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। हाउ कैन वी अज्यूम दैट मोदी इज़ रॉन्ग और अजीत डोवल इज़ रॉन्ग और बीजेपी गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग दे डू इज़ राइट। गुड, देन क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव फॉर योर ओन पीपल। दुनिया को फेक डीप फेक से बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, अपनी ही पब्लिक को डीप फेक से बेवकूफ़ बना रहे हैं हम लोग। दैट इज़ द ट्रेजेडी। और इतनी बुरी ट्रेजेडी है कि मेरे जैसे बंदा जिसके 5-10 हज़ार से ज़्यादा लोग देखते नहीं है शो, उनसे भी डर जाते हैं। आई थिंक द बिगेस्ट अब जो रिटेलिएशन आएगा सबसे बड़ा इंडिया के पास से, ये जो वीडियो मैं इंडिया में लगाऊंगा उसको ब्लॉक कर देंगे। कोई बात नहीं, आप तो लाइव देख लें। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दे कैन डू बिकॉज दिस इज़ वॉट देयर इंटेलिजेंस इज़ अबाउट। अपने बंदों पर नज़र ज़्यादा, वो टेररिस्ट वहाँ पहल, अभी तक टेररिस्ट को पकड़ा नहीं गया। April 22 और आज क्या तारीख है? मई की 10 तारीख, 18 दिन हो गए। वो टेररिस्ट कहाँ हैं? ताजमहल देखने गए। वेयर आर दोज टेररिस्ट? दे वेंट टू सी द ताजमहल। आईपीएल देख रहे होंगे, मतलब पता नहीं व्हाट दे आर डूइंग, जयपुर का टूर ले रहे होंगे। हैव दे लेफ्ट द कंट्री? आई मीन इज इन दैट अ फेलियर कि 18 दिन हो गए, आपके मुल्क के अंदर थे ये बंदे, आपने बस जाके बस इरेलीवेंट मासूम लोगों के घर घर को बुलडोज कर दिया इन्हें रैंडम वे, ताकि आपके क्रेजी पीपल ऑन द स्ट्रीट खुश हो जाएं। बट यू हैवंट एक्चुअली कॉट द टेररिस्ट। जो दूसरे टेररिस्ट हैं वो देख के बोल रहे हैं अरे वाह, ये तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट फौज है, इनकॉम्पिटेंट पुलिस है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए आ गई, इवन दे हैव नॉट क्रैक द केस। अभी तक तो दे माइट हैव क्रॉस द बॉर्डर इनटू नेपाल और इनटू बांग्लादेश, और एक फ़्लाइट कोलंबो चले गई थी वहाँ पे, उसमें सर्च किया। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द इंडियन इंटेलिजेंस इज थिंकिंग कि ये बंदे प्लेन में बैठ के जा रहे हैं। सो देर आर सम सो मेनी सीरियस क्वेश्चंस कि ये मैं लिटरली लिख कर बॉटल्ड अप रखा था, पूछूंगा ये सीज फायर ख़त्म होने के बाद। सो दैट इज़ द सीरियस क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क अबाउट। बस यही पूछते रहो, यस जी, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, दूसरों के बारे में आप व्हाट अबाउट अपने बारे में पूछ लें। व्हाट अबाउट योर गवर्नमेंट विच इज़ सो profoundly incompetent? Just because others are incompetent, it doesn't justify your incompetence.
just because Trump has failed in all his three peacekeeping. ना यूक्रेन रशिया का सीज फायर हुआ, ना हमास इसराइल का सीज फायर हुआ, ना इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर. जस्ट बिकॉज ट्रम्प हैज फेल्ड इट डजंट मीन यू आर सक्सेसफुल. समझे आप? अगर मैं 99 पे छक्का मार के आउट हो गया तो इसका मतलब नहीं कि आप जीरो पे आउट होके खुश हो जाएं. जस्ट कीप वरिंग कि आप जीरो पर हैं. So that is the only thing. What Indian population has learned now is to create all these narratives of hate towards Muslims or towards Pakistanis or towards others. All this talk that America is nothing. But the question is, we are not asking. देखिए, India has a very great opportunity in the next 15 साल में to become a genuinely major world power. इंडिया के पास population advantage है. The average age of India is I think around 40. दूसरे कंट्रीज़ में इकोनॉमी श्रिंक हो रहे हैं, पॉपुलेशन इज़ रिड्यूसिंग. 30 साल के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन विल बिकम अबाउट 1.75 बिलियन और चाइना का पॉपुलेशन विल बिकम 800 मिलियन. यानी इंडिया विल बी डबल द साइज ऑफ चाइना. यानी इंडिया की इकोनॉमी विल नेसेसरली हैव ए लार्ज मिडिल क्लास. तो इंडिया हैज़ अ चांस ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी इफ नॉट द सेकेंड बिगेस्ट. And India has a chance of becoming a world great power, but it needs to get its policies right. सवाल ही नहीं उठ रहा है अग्निवीर के वजह से क्या नुकसान हुआ है इंडियन आर्मी को. Why? Where is the decision? Why is Indian Air Force not top of the line? देख लें आप, जो इंडियन एयरफोर्स में जो जहाज़ें हैं जैगवार क्यों यूज टाइम कितनी पुराने हैं. मिराज, द ओनली न्यू वंस आर रफाले और वही गिरे हैं. वेयर इज तेजस? So there are several serious questions that are not being asked. And I am doing a great service. मुझे इसे कुछ मिलने वाला नहीं है. So have a serious conversation. I think it is time in India. Already मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग थू थू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, even from the right side. At least उनको थोड़ी अक्ल आ गई है कि they have understood. That is a big puzzle, Mailesh, कि why Pakistan broke the ceasefire, because it doesn't make sense at all. It is going to piss off Donald Trump. It is going to make America very angry. It allows India another chance to hit Pakistan. अगर इंडिया सीरियसली हमला कर देता है, लेट्स से कि इंडिया 500 मिसाइल ड्रोन्स मार देता है लाहौर में, और उसके अगर 10% भी 50 भी लग जाते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान. वाई इज़ पाकिस्तान टेकिंग दैट रिस्क? इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन. और वो सवाल का आपको जवाब जब भी मिल सकता है कि जो सोचने वाले लोग हैं, जो इंटेलिजेंस वाले हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको आज़ादी दें, फ्रीडम टू आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर दोज क्वेश्चंस, जो इंडिया में नहीं है. देयर आर नोबडी इज आंसरिंग माई क्वेश्चन. वाई इज नो तेजाज फ्लाइंग? मुझे जवाब दें. वाई इज नोबडी आस्किंग राजनाथ सिंह कि भाई तेजाज को आपने क्यों यूज़ नहीं किया? इट वॉज अ ग्रेट चांस टू शो ऑफ तेजाज. अगर तेजाज जाके कुछ धूम कर देता पाकिस्तान में या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो देन आप बहुत सारे बेच सकते थे. एंड द मोर तेजाज यू सेल अब्रॉड, द मोर सब्सिडीज हो जाती, आपके लिए रिसर्च के लिए पैसे आ जाते, उसकी एवरेज प्राइस कम हो जाती. लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. वाई डेंट यू यूज़? नो बडी इज आस्किंग द क्वेश्चन. जाके देखें अर्नब गोस्वामी, मुझे भेज के दें कुछ सीरियस सवाल पूछे हैं या नहीं उसने. दैट इज़ द benchmark of Indian journalism, that nothing serious is happening. This is a very good question कि why is Pakistan breaking the ceasefire? अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मूव्स करके ट्रिगर किया, इज इट बिकॉज कि चाइना ने दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर, सेइंग डू नॉट स्टॉप द वॉर नाउ, वी वांट यू टू फाइट मोर? इज दैट वाई? और इज इट बिकॉज somebody in the Pakistani military is trying to upset the government and conduct a military coup? Is the Pakistani military trying to get rid of Asim Munir, or is it trying to get rid of Shehbaz Sharif? Why are they embarrassing Pakistan? Those are very serious questions, and we need to have a discussion about those things rather than saying कि हमने पेशावर को मार डाला, ये मार डाला. कुछ भी नहीं हुआ यार. लोगों के वीडियोस देखें आप, लाहौर में इतना मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानी, पान खा रहे हैं,
चाय पिए हैं। एक चाय पराठा खा रहा था मुझे लालच हो गई। चाय पराठा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बिनेशन। बैठ के लाहौर में इंडिया टेलीविजन पे कह रहे हैं कि हमने लाहौर को तबाह, आग लग गई शहर में, कुछ भी आग वाग लगी नहीं शहर में। यस, एक ड्रोन गिरा, एक्सप्लोड हुआ, देयर वाज एन एक्सप्लोजन, उससे कुछ नहीं होता। पिछले 3 साल से इतने सारे ड्रोन्स मार के देखो आप, कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ रशिया पर जो यूक्रेन ने मारे हैं 3 साल में। सो देर आर दो सीरियस क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, एंड इसका लॉन्ग टर्म असर भी होगा इंटरनेशनली, दैट पीपल आर नॉट आस्किंग। दैट्स ए गुड क्वेश्चन टोपलाड, TOPLAD, बहुत ज़बरदस्त सवाल उठा है। बिकॉज देखिए, ऑलरेडी जो मिलिट्री डिस्कशंस हो रहे हैं, अ, उसमें सवाल ये उठ रहा है कि वाई इज द चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्मिंग द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। AMDs कहाँ थे इन रिस्पॉन्स टू द PL-15s? तो PL-15s हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इसमें। इनफैक्ट इंडिया को एक बोनस हो गया, एक PL-15 मिल गया है इनको। Hopefully they will be able to reverse engineer it and have some technological progress for India. और स्टॉक्स तो चेंगड़ू का भी 20% ऊपर चले गए। सो दैट इज़ ट्रू। सो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि what happened, how is it performing. I'm assuming you are talking about जो यूरोपियन कंसोर्शियम का जो एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल है, दैट वाज सपोजिटली व्हाट रफाले वाज कैरिंग। सो उसके बारे में कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक ये मिलिट्री का सवाल है, uh, अशोक जी, जाहिर है आई वॉज डूइंग ए लाइव शो लेट नाइट एंड देन आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग फ़ोन कॉल्स फ्रॉम मीडिया। मैंने नॉन स्टॉप मीडिया किया है। BBC देख लें आप, सत्य हिंदी पे 1 घंटा था। आई हैव डन अदर शोज यहाँ पे लोकल अमेरिकन मीडिया भी कर रहा हूँ। So those are some of the things. Oh, my questions are biased भाई, बहुत अच्छे आंसर्स तो दे दें। So questions are biased का क्या मतलब? I'm asking tough questions to Modi. I should not be asking. Why did Modi not go to Kashmir? Is that a biased question? Why did they not use Tejas? It's a genuine question. What is the bias about it? Did India establish deterrence? क्या आपने डरा दिया पाकिस्तान को फ्यूचर टेररिज्म के खिलाफ? इज दैट अ बायस्ड क्वेश्चन? तो मैं क्या पूछूं? आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? उसके अलावा और सब चूज बायस्ड है ना आपकी नज़र में? आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस स्टूपिड bias. What is the bias? They are straightforward questions. Expose the bias in the question. मयंक गौतम, यस, आवर पॉपुलेशन एडवांटेज हैज 15 साल है, उसके बाद सब बुढ़े हो जाएंगे। वंस यू हैव 1.7 बिलियन पॉपुलेशन एट द एज ऑफ 60s, दिल्ली में लोग अपने माँ बाप को सड़क पे छोड़ के भाग जा रहे हैं बिकॉज दे नॉट एबल टू अफोर्ड। जो लोग, बूढ़े लोग जिनके पास गवर्नमेंट का पेंशन्स है, वो मज़े में हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पेंशन्स आर मोर देन द सैलरीज ऑफ न्यू पीपल। 60,000 70,000 रुपये मिल रहे हैं जो मिड लेवल लोग रेलवे से उधर से रिटायर होके आए हैं। उनके बच्चे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करके उनको 30,000 रुपये नहीं मिल रहे महाना। सो दोज पीपल हु हैड गवर्नमेंट जॉब्स, दोज ओल्ड पीपल आर डूइंग वेल। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनके बच्चे उनको छोड़ के जा रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव एन एपिडेमिक ऑफ ओल्ड पीपल पुटिंग a lot of pressure on pensions। जो इंडिया का डिफेंस बजट है तकरीबन $80 बिलियन पर, 85, इट इज़ नंबर थर्ड या फोर्थ डिपेंडिंग ऑन सऊदी अरेबिया एंड इंडिया। आप जाके देखें, सऊदी अरेबिया मोस्ट ऑफ इट्स पैसे खर्च करता है ऑन बाइंग फॉरेन वेपन्स। इंडिया सबसे ज़्यादा पैसे पेंशन्स पे और सैलरीज पे खर्च करता है, नॉट ऑन एक्विजिशन ऑफ वेपन। सो द पॉपुलेशन एडवांटेज थोड़ा सा है बिकॉज इट अलाउज यू टू हैव ए बिग मार्केट, लॉट ऑफ पीपल। अगर 1.7 बिलियन लोग हैं तो आप 1.7 आईफोन्स बेच सकते हैं उनको, 1.7 इडली वड़ा बेच सकते हैं उनको। बट आफ्टर दैट दे बिकम अ बर्डन।
So it is a very serious question that you have asked about old people, Mayank, that after 15 years it will not be an advantage. Right now it is an advantage. Um, नो सर, मैं बांग्लादेश पे नज़र नहीं रखा पिछले 3-4 दिन से। तो आई बिन जस्ट वाचिंग दिस एंड थोड़ा बहुत इकोनॉमी और टैरिस पे नज़र रख रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिस भी डिस्काउंट कर दिए हैं चाइना की तरफ। चाइना से डायरेक्ट मीटिंग हो रही है। 145 से जाके वो अब 80% या 85% उन्होंने कर दिया है। तो सो दोज थिंग्स आर हैपनिंग। ये आ गए यश विश्वगुरु मौलाना मुनीर। गुड जॉब। जूते पड़ रहे हैं वहाँ पर। जाओ लड़ लें, मुनीर से चांस मिला आपको। आई एम टायर्ड ऑफ दिस रबिश। थैंक यू वेरी मच पेडे लोफर पांडे साहब, आई अप्रिशिएट इट। Ismail Mohammed, what was the reason Turkey was helping Pakistan with ammunitions? How do you rate intelligence from Turkey? I don't understand Turkey's policy because Turkey का अर्दोगान एंड इमरान खान और अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया, ये तीनों ने मिलके एक एंटी इस्लामोफोबिया ग्रुप बनाया था। बट इमरान खान जेल में है, अनवर इब्राहिम इज़ रिटायर्ड एंड गॉन, अर्दोगान बाकी है। तो अर्दोगान has always raised the Kashmir issue because he thinks कि अपनी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी के लिए, जैसा इंडिया में बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में इतनी धूम धूम धूम, जेनोसाइड 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 जेनोसाइड, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार डाला, सबको ख़त्म कर दिया। अब चुप हो गया ना सब कुछ। इलेक्शन हो गई, सब कुछ चुप हो गया। So Modi used the minority card in Bangladesh for his political purposes. So Erdogan is also using the Gaza issue and the Kashmir issue to show that he is very Muslim and very supportive of Muslims. हालांकि चांद से लड़ें जाके इसराइल से दम है तो नहीं कीता है, उसे बातें करते हैं। सो बट ही इज़ प्रोवाइडिंग सम वेपन्स टू इंडिया बिकॉज शुरू से इंडिया से टेंशन है। इंडिया ने जाके ग्रीस के साथ और क्रीट में एंटी टर्की 2-3 मूव्स कर चुके हैं। हालांकि जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था, इंडिया ने बहुत सारा एड भिजाया था, हवाई जहाज़ें भर के इंडिया के तरफ से। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू प्रोवाइड एड टू टर्की आफ्टर द अर्थक्वेक। तो इंडिया ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद टर्की बट टर्की इज़ नॉट डजंट सीम टू बी इंटरेस्टेड। इंडिया उनके पास से ड्रोन्स खरीदने की भी कोशिश किया था तो टर्की डिड नॉट ट्राई टू सेल। सो इस्माइल, टर्कीज पॉलिसी इज़ दैट इज़ मोर अलाइंड विद पाकिस्तान देन विद इंडिया। हालांकि थोड़े दिन पहले जो गुलेनिस स्कूल्स वगैरह थे इंडिया में वो सारे बंद कर दिए थे। सो इंडिया डिड respond to some of the demands from Erdogan, but Erdogan, मतलब I blame Turkey for having bad relations with India as opposed to say Saudi Arabia or UAE और दूसरे जो दीगर Egypt, they all have much better relations. देखिए इजिप्ट इतना बड़ा important Muslim country, it's pretty quiet on this issue. Uh, so that is one of the problems. Two authoritarian Muslim regimes, one superpower, full authoritarian superpower, two of the three hostile neighbors are nuclear. Yeah, अपना neighborhood सुब्रमण्यम प्रभु is a very dangerous हमारे इलाके में हर country has two neighbors with nuclear weapons. पाकिस्तान के दो, चाइना और इंडिया न्यूक्लियर पावर्स। इंडिया के चाइना एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्स। पाकिस्तान, चाइना इज़ द वर्स्ट, उसके 4 नेबर्स हैव न्यूक्लियर पावर्स, इंडिया, पाकिस्तान, Russia and North Korea. It is surrounded by 4 nuclear powers. So in terms of uh, डेंजरस नेबरहुड, ये सबसे डेंजरस नेबरहुड चाइना के लिए है बिकॉज इट्स सराउंडेड बाय 4 nuclear पावर्स। लेकिन जिसमें चाइना के लिए एडवांटेज ये है कि 3 nuclear पावर्स उसके थोड़े चमचे बन गए हैं, विच इज़ पाकिस्तान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। एंड थोड़ा डिपेंडेंट है वो चाइना पर, सिवाय इंडिया के। बट चाइना इन्फ्लुएंस इज़ इंक्रीजिंग इन साउथ एशिया। मतलब आप देख लें साउथ एशिया में इंडिया की दोस्ती किसके साथ है? पूरे नेबरहुड में। चाइना हैज़ बेटर रिलेशंस विद बांग्लादेश नाउ। चाइना आफ्टर जो सपोर्ट चाइना ने पाकिस्तान को दी है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इट हैज़ सेंड द मैसेज टू अदर पीपल दैट चाइना इज़ रिलायबल। तो बांग्लादेश विल बिगिन टू रिलाई मोर ऑन चाइना। मॉलडीव्स भी तो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव है।
अभी इंडिया ट्राई टू पैच अप विथ श्रीलंका, यूएई की मदद से, यूएई के पैसों से वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं श्रीलंका में. बट श्रीलंका owes more money to China and is more dependent on China. और जो करंट प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, वो मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड से हैं. सो वी आर अज्यूमिंग ही हैज सम सिंपथीज फॉर चाइना. Yes, Rishi, I don't know about the nuclear technology, but yes, Turkey did want to have much better relations with India. But because Erdogan is a kind of an Islamist, he was reacting to the Hindutva politics of Modi. आप लोग, you all assume कि Modi is neutral. Modi is not. Modi does a lot of things which are anti-Muslim, anti-Islamic. Just because the Arabs are in good relation with India, it doesn't mean that Muslims all over don't look. जैसा कि बाली जाके इंडोनेशिया गए थे, it is the biggest Muslim democracy. It is the fourth biggest. It is the third biggest democracy in the world. Indonesia, US और इंडिया के बाद, इंडिया और यूएस के बाद in terms of population. और इट इज़ द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री. वहाँ जाके आप विष्णु पूजा के बारे में बात कर रहे थे बाली में. ही कम्प्लीटली इग्नोर द फैक्ट कि इंडिया में भी दो 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 20 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 30 करोड़ हैं. सो ही कुड हैव यूज्ड इस्लाम एज ए ब्रिज बिटवीन इंडोनेशिया एंड इंडिया. ही कुड यूज़ इस्लाम एज ए ब्रिज विद सेंट्रल एशिया, लेकिन वहाँ पे बुद्धिज़्म घुसाड़ के बैठे हुए हैं. आई मीन आप जाके देखें, सेंट्रल एशिया इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर मुस्लिम. मैं प्रोग्राम रन करता हूँ स्टेट डिपार्टमेंट के लिए यहाँ यूएस में. तो हर साल मेरे पास आते हैं लोग फ्रॉम सेंट्रल एशिया. आज से 10 साल पहले वो आते थे और मुझे वाइन की बॉटल्स ला के देते थे कज़ाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से. मैं तो पीता नहीं अल्कोहल. आई वुड यूजुअली गिव देम एज गिफ्ट टू लोकल, मतलब उनसे ही गिफ्ट दिलवा देता दूसरों को. अब वो जब आते हैं कज़ाकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, जो लोग प्रोफेसर आ रहे हैं, वो पहला सवाल पूछते हैं, वेयर कैन वी गेट हलाल मीट. I have seen the difference in the steady Islamization of Central Asia. तो जब सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुक बढ़ाने जाने जाते हैं इंडिया, वो बुद्धिज़्म प्रमोट कर रहे हैं. एज इफ़ सेंट्रल एशिया अपने 1000 साल की जो हिस्ट्री है इस्लाम की, वो छोड़ के इंडिया से दोस्ती करने के लिए वो बुद्धिज़्म बन जाएंगे. रबिश. इंडिया में खुद बुद्धिज़्म इतना सा less than 1% है. सो दिस फॉरेन पॉलिसी जो मोदी की है, द अरब्स तो आर नेग्लेक्टिंग. उनको आदत हो गई ना घुटने टेकने की इसराइल और अमेरिका के सामने. सो दे आर ओके विथ बेंडिंग द नी टू इंडिया. बट प्लेसेस लाइक टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, दे आर नॉट. मलेशिया देखो आप, supported Pakistan's position on calling for third party investigations in what happened in Pahalgam. If India had this policy continue, Pakistan will stay forever and India will be broken. I don't know about that, yeah. Pakistan is on the verge of a collapse. It's already a failed state. So that is something that you need to keep in mind. कि ये छोटा, जैसा मैंने कह रहा कि दिस इज़ लाइक ए T20. T20 में कोई भी जीत जा सकता. आप एक ट्राविस हेड के 2 कैचेस ड्रॉप कर दें, वो मार देगा 150. But if this becomes a long war, then India will outlast Pakistan easily. India has a lot more cash, $600 billion cash. They can buy weapons from all over the world. And if foreign countries do not sell weapons to India, India can buy it off the black market. Pakistan कहाँ से खरीदेगा? भीख ही मांगते रहेगा चाइना से, प्लीज़ दो हथियार. So it's up to China how long it will support Pakistan. So a long term war अगर ये 1-2 महीने चली तो आपकी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा. So that is why I'm surprised that Modi went for a ceasefire so quickly. An early quick fire was in the ceasefire was in the interest of Pakistan, not India. And why Iranian foreign came during the war? Iran का foreign minister का, it was very interesting. वो पहले से schedule था 8 मई को. This is सवाल for H. Singh. 8 May को was the celebration of the 20 years of some diplomatic कुछ relationship between India and Iran. तो वो he was coming, Abbas Arachi was coming to celebrate that. तो वो आते आते पाकिस्तान में रुक कर he discussed. तो पाकिस्तान में जब वो थे, he talked a lot more about this conflict. And then he came to India and tried to volunteer to mediate.
अनलाइक द सऊदी एम्बेसडर जो सीधा अनअनाउंस्ड वो पहले इंडिया आए, फिर उसके बाद वापसी में वो इस्लामाबाद रुकते हुए गए. सो इट शोज दीज थिंग्स आर डिप्लोमेट, मतलब ये एक्सीडेंटली नहीं है, दीज आर इंटेंडेड सिग्नल्स दैट कंट्रीज आर सेइंग. इनफैक्ट बाज़ लोग बड़े नाराज़ हैं कि जो रोल सऊदी अरेबिया और ईरान ने अदा किया इन नेगोशिएशंस बिटवीन दीज कंट्रीज़, उसका क्रेडिट उनको नहीं दिया, सारा का सारा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया गया. Rishabh Gupta Khan Saab, I have a question. Why does Pakistan continue the terrorism policy? How does it serve them? This यार मेरे समझ में नहीं आया. जितना जूते मुसलमानों को पड़े हैं ना इस सेंचुरी में, 9/11 किया, 3,000 अमेरिकन को मारा, क्या अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बदली? नहीं. क्या अमेरिका का सपोर्ट इसराइल के लिए गया, ख़त्म हुआ? नहीं. उल्टा अमेरिका ने आके मुल्कों को तोड़ डाला, इराक़ को तबाह व बर्बाद कर दिया, तकरीबन 1 मिलियन लोग मारे गए. उसके बाद जो अरब स्प्रिंग था वो भी डिबो गया. सो वहाँ पे मुसलमानों ने जो 9/11 किया उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अफ़गानिस्तान तबाह हो गया. फिर उसके बाद आप देखो अक्टूबर 7 ने हमास ने किया, क्या मिला हमास को? हमास के ही लीडरशिप मर गए, 70,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे गए गाज़ा में, बच्चे औरतें, फ्यूचर तबाह, पूरा का पूरा. आप लोग जाके गूगल इमेजेस में जाके देखें गाज़ा के फ़ोटोग्राफ्स बिफोर अक्टूबर 7 और अब तो कुछ भी नहीं है. आप देखें अक्टूबर 7, इट लुक्स मोर डेवलप्ड देन इंडिया. गाज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके ऊपर इतना ज़्यादा सैंक्शंस वगैरह इसराइल ने डाल के रखे, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. अब पहलगाम, इसमें क्या मिलने वाला है? कश्मीर आज़ाद होगा? नहीं होगा. ये बात है कि दिस दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉम्पिटेंट है, दे हैव मिस हैंडल्ड इट. वरना पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल हो सकता था पहलगाम की वजह से. पिछले 30 साल से टेररिज्म, 1986 से ये चल रहा है कश्मीर में, कुछ नहीं हुआ. 1949 से जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 1 इंच इधर उधर नहीं हुआ. इतना टेररिज्म होने के बावजूद नथिंग हैज़ हैपेंड. पाकिस्तान का रेपुटेशन ख़राब हो गया, FATF में आ गए थे वो. अभी तो मुस्लिम दुनिया में कोई स्टेटस ही नहीं रहा पाकिस्तान का. इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर, द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री. उनके पास काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं. यहाँ पे डेलावेयर में तकरीबन 300 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं. सो पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स, engineers, बट इट हैज़ नो रिस्पेक्ट इन द मिडल ईस्ट बिकॉज ऑफ दिस. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब लॉजिकली मैं आपको कह सकता हूँ कि लेट्स से कि आपकी हैसियत है टू बाय बाईसाइकिल, आपके पास इनकम ही नहीं है, साइकिल से ज़्यादा आप कुछ ख़रीद ही नहीं सकते, लेकिन आप तड़प तड़प के मर रहे हैं कि मुझे एक हीरो होंडा चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे यामाहा चाहिए. इफ़ यू आर सो डेस्परेट फॉर ए मोटरसाइकिल एंड यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू बाई इट, देन आप चोरी कर लेंगे ना यामाहा किसी की. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. फॉरेन पॉलिसी की जो एम्बिशंस है पाकिस्तान के, गोल्स, इट इज़ बियॉन्ड देयर कैपेसिटी. Pakistan's foreign policy goals and foreign Pakistan's military capabilities are out of sync. तो वो जो कैपेसिटी गैप है वो टेररिज्म के थ्रू या इरेगुलर वॉरफेयर के थ्रू वो भरना चाह रहे हैं. और देखो 1948 में भी पाकिस्तान हैड डन दिस. इरेगुलर्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने, डायरेक्ट फौज का अटैक नहीं किया था. तो ये पैदाइशी बीमारी है पाकिस्तान की, टू यूज़ प्रॉक्सीज. आई एम सॉरी टू से दैट. या जावेद साहब वो क्या कर सकते हैं, अभी भी गोरे. अब मैं क्या बताऊं, बेवकूफ़ बना रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं. देखो ट्रम्प अपनी डोमेस्टिक इमेज बना लिया कि मैंने देखो सीज़ फायर करवा लिया. आई फाइंड दैट वेरी फनी. आफ्टर सेइंग कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, विद इन 24 आवर्स उन्होंने अबाउट टर्न कर लिया. दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस. और अब देखना कि ये देर बी मोर ब्रेन ड्रेन फ्रॉम पाकिस्तान इस जंग के बाद. और जब जंग ख़त्म होगी तो देर बी मोर पॉलिटिकल, मतलब स्ट्रगल पाकिस्तान में. स्टेबिलिटी उतनी नहीं आएंगी. यस, थोड़ा बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी शहबाज शरीफ की. एंड अगर सीज़ फायर पाकिस्तान मेंटेन करता ना तो आई थिंक आसिफ मुनीर एंड शहबाज शरीफ वुड हैव कम आउट पॉजिटिव. लेकिन अब नहीं. एनीवे यार मैं थक गया हूँ. आई वांट टू गो ईट एंड टेक अ नैप. फिर थैंक यू फॉर वाचिंग. देखता हूँ कि और क्या हो रहा है आप लोगों के पास. तो काफ़ी लेट नाइट हो गई है वहाँ पर. सो आई एम ट्राइंग टू गेट सम इंडियन डिप्लोमेट्स टू कम एंड टॉक अबाउट दिस. तो कल बात करेंगे आपसे.
सो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इससे पहले कि इंडिया में ये वीडियो भी ब्लॉक हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर इट अराउंड। टेक केयर, बाय। थैंक यू ब्रॉड सोड।